Hello friends, welcome to our channel The Motion Tutorials once again. So today we are going to discuss about last one exercise of quadratic equations of class 10th. That is exercise number 4.4. Okay. So in first one question, what has been given? In first one question of exercise number 4.4, it's been asked, find the nature of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. Okay, three equations are laid over there. Friends, we already have discussed about the quadratic equations and its roots. Okay, quadratic equations and their roots. How many types of roots are there? How can we identify them? And how can we find out the roots of these quadratic equations? And what about their nature? Okay, nature in the sense what? That we studied last time. When discriminant is greater than 0, it has two real roots. Okay, real roots exist, in which we studied about the roots, how to find out them. Alpha root, if d is greater than 0, then there are two roots, okay, two real roots that exist there, which are alpha and beta. And how can we find out alpha? Alpha is equal to minus b plus under root d upon 2a, and beta is equal to minus b minus under root d upon 2a. Okay, so but when d is equal to 0, alpha and beta root, both of them will be equal to each other. Why? Because the roots are real, they are equal to each other, therefore they are called as equal and repeated roots. Okay, so when d is less than 0, it means when the value of d are in negative. Okay, when the values of d are negative, the real roots do not exist. We don't need to calculate any roots over there, as if we calculate further, we will be obtaining just the roots which are negative, okay, which are not real. Okay, so we will discuss about the real and imaginary parts in 11th class. Okay, later on we will be studying about that. So without delay, let's go to first one part of this question. So friends, what has been asked here, see what has been given us, what has been given to us. So without delaying, let's go to the first one part of the question. Okay, what is been asked to us? There is given 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0, quadratic equation. Okay, so the first of all, what we have to do in order to check whether the roots exist or do not exist, how? We need to find out d means discriminant, we need to find out that. ठीक है, ऑब्वियसली वही करना पड़ेगा दोस्तों. देखिए, जब d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी तो पता चलेगा हमें, ठीक है, कि रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, यानी आपके जो वास्तविक मूल है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा. पहले हम विभक्त कर फाइंड करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं. सो इसमें क्या करते हैं हम, हियर a इक्वल टू क्या है आपका 2 और b इक्वल टू आपका -3 और c इक्वल टू आपका 5. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब नंबर्स को लेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट्स को लेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस भी साथ में ले लिया जाए. ठीक है, प्लस को तो लिखा नहीं जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस होगा तो माइनस को लेना है. डोंट इग्नोर दैट साइन. ओके, इफ इट्स गिवन इन माइनस. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी कि विभक्त जो होता है वो क्या होगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा. सो d इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, b माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी माइनस 4 इंटू वट इज वैल्यू ऑफ a, 2 इंटू c इज 5. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू व्हाट, 9 माइनस 5 4 22 40. व्हाट, 5 2 10 4 40. ओके, सो d इज इक्वल टू व्हाट, 31 माइनस. ओके, सिंस
d is less than 0, therefore the real roots do not exist। ठीक है, यानी चूंकि d आपका जो है 0 से कम है, अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जब वास्तविक मूल्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, हम सेकेंड वाला पार्ट पे हैं। दोस्तों हम इस क्वेश्चन के सेकेंड वाले पार्ट पे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ आपका कि 3x² माइनस 4√3x + 4। अब हम क्या करते हैं, देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, b इक्वल टू आपका -4√3 और c इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से d निकालते हैं, यानी कि d फाइंड करते हैं। d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, d इक्वल टू आपका b² - 4ac, जो d जो होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की जगह -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के वैल्यू कितना 3 इंटू c के वैल्यू 4, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 4 जा 48, यही होगा। d इक्वल टू आपका कितना जा 48 माइनस 48, d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। दोस्तों हमने क्या बताया था, जब d 0 का बराबर होता है तो जो रूट्स होंगे एग्जिस्ट तो होंगे, लेकिन दोनों ही रूट्स आपके जो होंगे इक्वल होंगे। इस कारण से अल्फा रूट भी सेम वैल्यू है जिसका बीटा रूट आता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जब बराबर हो जाएंगे तो जब बराबर हो जाएंगे तो फिर रिपीटेड रूट हो जाएंगे। ठीक है, सो इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स, सिंस d इक्वल टू 0 the equation has equal and repeated roots। ठीक है, सो रिपीटेड रूट्स क्या क्या है, वो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये तो मानते हैं हम। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a। ठीक है, ये होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम अल्फा रूट को अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट डी अपन 2a। दोस्तों ये प्लस माइनस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -b माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a। प्लस माइनस है तो पहले वाला वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर वाला साइन देंगे प्लस, और बीटा निकालेंगे तो नीचे वाला वैल्यू देंगे। समझ आ रहा है, मतलब कि माइनस वाला देंगे साइन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b के वैल्यू कितने हैं आपका -4√3 और d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा +0। अपन में क्या हो जाएगा 2 इंटू a के वैल्यू कितना आपका 3 है, क्या है 3। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा +4√3 अपन में 2 और 3। ठीक है, 2 इंटू 3 4 2 2 जा 4। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3 अपन में 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से फिर हम क्या करते हैं, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -4√3
ठीक है, और माइनस √0, ऊपर में क्या हो जाएगा आपके 2 × 3, यही है। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि चलिए ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√3 अपन में 2 × 3, क्योंकि 0 का तो 0 ही होगा, इसको करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 2 जा 4, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2√3 अपन में 3। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी विविक्तर आपके जो 0 होता है, शून्य आ जाता है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, सॉरी, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर आपके 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो दो वास्तविक मूल्य होंगे, यानी कि दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा और बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों ही रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे उस चीज को हमने कैसे मतलब कि शो किया, यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आपका -b प्लस माइनस √d अपन में 2 है। इसी भी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं एक फाइंड करके, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा के लिए हमने इधर फाइंड कर दिया और बीटा के लिए उधर फाइंड कर दिया। अल्फा के लिए प्लस वाला साइन लेना है, बीटा के लिए माइनस वाला साइन लेना है। जब कैलकुलेट करते हैं लास्ट में फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों का अल्फा रूट इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, और बीटा रूट इक्वल टू आपका ये आ जाएगा। देखिए वैल्यूज आपके सेम टू सेम आ रहे हैं। देयरफॉर द रूट्स इक्वल टू 2√3 अपन में 3, ये आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसा थर्ड वाला पार्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या दिया हुआ है आपका, 2x² - 6x + 3 = 0 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम डी से चेक करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू आपका 2, b इक्वल टू आपका -6 और c इक्वल टू आपका 3। ठीक है, सो d इक्वल टू क्या हो गया आपका b² - 4ac, d² - 4ac। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 3। ठीक है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 -4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12, d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, d इक्वल टू आपके क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू आया। सो हम क्या करते हैं, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, यानी कि द रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्या क्या होंगे आप देखिए, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d अपन में 2a, और फिर क्या होगा आपका बीटा इक्वल टू भी क्या होगा -b माइनस √d अपन में 2a, यही है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -b, b के वैल्यू कितने हैं -6 प्लस √d √12 अपन में क्या हो जाएगा कि 2 इंटू a के वैल्यू कितने हैं आपका 2। ठीक है, सो ये अल्फा का वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू, सो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 अपन में 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, √12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कि अंडर के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर निकल जाएगा 2√3। ठीक है, अब यहां देखिए बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 माइनस √12 अपन में क्या हो जाएगा नीचे 2 इंटू a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो फिर इसमें साथ साथ कर रहे हैं हम, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2√3 ऊपर में 4, यही होगा। सो दोनों को साथ साथ जब चलते हैं पैरेलल, अल्फा इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 3 प्लस क्या बच जाएगा √3 अपन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ओके, इधर भी बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कॉमन निकालेंगे 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4, 2 टू जा 4। तो अब क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2, बीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 अंडर रूट में ओवर 2। अब इससे आंसर भी क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर रूट्स इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 3 प्लस अंडर रूट 3 अपन 2। ठीक है, यहां माइनस दे दीजिए। ठीक है, यहां पर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपन में 2, यहां 3 माइनस अंडर रूट 3 अपन में 2। ये बीच वाला साइन यहां प्लस है, यहां माइनस है ना, तो पहले वाला को हम प्लस ऊपर दे देते हैं और दूसरे वाले को माइनस नीचे, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मोसम ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। सो क्लास, हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, सो क्लास आज हम एक नया प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, न्यू टाइप के क्वेश्चन। न्यू टाइप के क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हटकर है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ये है और सेकेंड वाला पार्ट, दोनों क्वेश्चंस लेड आउट कर दिए गए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या देता है कि ये जो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस जो है, इनके इक्वल रूट्स हो। ठीक है, तो के का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखते हैं किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं इसको। देखिए, हमारे इक्वल रूट्स कैसे पता चलेगा भाई, d इज इक्वल टू 0 तो हमारे इक्वल रूट्स होंगे, जो कि अल्फा रूट इज इक्वल टू बीटा रूट। ठीक है, सो हम d तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसा है कि a इक्वल टू आपका क्या है, 2 है, b इक्वल टू आपका क्या है, k है, और c इक्वल टू आपका क्या है, 3 है। यही है। अब देखिए दोस्तों, d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू आपका क्या है, ओके ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस तरफ ले लिया और d को हम उस तरफ दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका d जो है, d के वैल्यू क्या है, d के वैल्यू इसमें 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आपका मतलब क्या है, b क्या है आपका, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के वैल्यू क्या है 2 इंटू c के वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। d इक्वल टू हमने 0 क्यों दिया, a इज when d equal to 0 the roots are equal। जब आपका मतलब कि d इक्वल टू 0 होता है तब रूट्स आपके इक्वल होते हैं, इसलिए 0 हमने d की जगह ले लिया। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 टू जा 24 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24 होगा, और k इक्वल टू अंडर रूट 24 होगा। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24 का क्या हो जाएगा भाई, 24 का ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 3 जा 6, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 6। कोई परेशानी है, k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 6, 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आपके k इक्वल टू आपका 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। इन द सेंस k इक्वल टू आपके प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इस कारण से हम ऐसे दे देते हैं आंसर। ठीक है, इसके बजाय। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला पार्ट में चलते हैं। इसमें क्या दिया है
कि के देखिए ऐसा है के एक्स और एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसे कि ब्रैकेट ओपन करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यही है। अब यहां से हम क्या करते हैं, a इक्वल टू आपका k हो जाएगा, अच्छा b इक्वल टू माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है, और c इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। x वाले टर्म को छोड़ करके इसमें से बचा क्या है, k, a इक्वल टू k हो जाएगा, और इसमें आपको मतलब x वाला टर्म छोड़कर माइनस 2k आपका b हो जाएगा, c इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा d होता है, ये हमें पता है अच्छी तरह से, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें भी आपके क्या कह रखा है कि 2 इक्वल रूट्स कह रखा है, 2 इक्वल रूट्स इक्वल टू आपका अल्फा रूट इक्वल टू बीटा रूट, जहाँ पर d इक्वल टू 0 आता है। तो हम क्या करते हैं, b की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k इंटू सी की वैल्यू कितना 6 इक्वल टू 0, फिर से d की जगह हम 0 दे देंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टू द 4 k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 24k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसमें से आपका 4k स्क्वायर इक्वल टू आपका 24k, सीधा हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4k इक्वल टू 24 और k इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपन में 4 6 24, k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ k is 6 that satisfies this equation when d equal to 0 or when there are two equal roots, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके अंडर रूट में है तो इसका प्लस या माइनस हो सकता है, और इसमें आपका k इक्वल टू डायरेक्ट 6 आ रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो क्लास अब हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कवर कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे लॉजिकल और कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, जो टाइपिकल क्वेश्चंस होते हैं हम देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ठीक है, whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक ऐसा बाग यानी कि बागान जिसमें हमने कई सारे मैंगोज लगाने हैं, मैंगो का एक समूह जो होता है, ठीक है, ग्रुप कहलाता है। तो इसमें जहां हमने मैंगोज लगाना है, वो मैंगो का जो बागान जो है, जो यानी बाग जो है, वो पॉसिबल है या नहीं, जिसका ब्रेथ अगर हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ b हो, और एरिया क्या है आपका, एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो इस बाग की। पॉसिबल है या नहीं है इस चीज़ को देखना है, यदि पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। लेट द ब्रेथ और ग्रुप इक्वल टू कितने हैं आपका x मान लेते हैं, हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है, b भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो whose length is twice its breadth, ठीक है, कहता है ब्रेथ हम x मानेंगे क्योंकि इसकी जो लंबाई जो है वो दिया हुआ है, कितनी दी हुई है, ट्वाइस कह रहे हैं, ठीक। तो देन द लेंथ
ऑफ द ग्रुप इक्वल टू ट्वाइस, दोगुने कह रखा 2x। अब हम क्या करते हैं, यहां पर करते क्या, ऑल्सो एरिया ऑफ ग्रुप इक्वल टू कितने 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो L इंटू बी इक्वल टू 800, ठीक है। अब देखिए क्या है, लेंथ कितने हमारे पास 2x इंटू ब्रेथ कितने हैं आपके x इक्वल टू 800, यही होगा। देखिए 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800/2, ठीक है। 2 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब 400 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, x इक्वल टू 20 आ गया। तो हमारे पास क्या चीज़ है, जो ब्रेथ जो है आपके पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ रखा है। येस इट इज पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर द breadth of the groove is कितना है आपका 20 मीटर and the length of the groove इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 20, ट्वाइस कह रखा है 40 मीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या दिया गया सिचुएशन पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। कंडीशन ये दिया हुआ, यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। दोनों दोस्तों का एज जो है 20 है, ठीक है, 20 ईयर्स है। उन दोनों दोस्तों का एज जो है उनका सम जो है 20 ईयर्स है। अच्छा, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, ठीक है, इन ईयर्स। यानी हम क्या कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सॉल्यूशन है द फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। पहला जो मित्र जो है उसकी अगर वर्तमान आयु x ईयर्स हो, ठीक है, x ईयर्स हो, तो हम क्या करते हैं, हमें सम दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इज 20 माइनस x, ठीक है। अब यहां देखिए 4 years बैक अब 4 साल पहले की आयु हम बताते हैं। अभी ये तो प्रेजेंट एज का हमने लेट किया है, ठीक है। तो 4 years बैक क्या थे, फर्स्ट फ्रेंड्स एज वॉज कितना x माइनस 4 years। क्यों, 4 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी, 4 साल कम, तो x अभी प्रेजेंट एज है तो x में से
प्रेजेंट एज में से 4 साल कम कर दीजिए, 4 साल पीछे के एज आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड फ्रेंड्स एज वाज कितना, 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। 20 माइनस एक्स उसका प्रेजेंट एज है, तो अब उसकी 4 साल बाद आयु, नहीं 4 साल पहले आयु कितनी थी, यहाँ से 4 ईयर्स को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स, ठीक है, ईयर्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल टू कितने, 48 है, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट किसकी, 4 साल पीछे दोनों ही फ्रेंड्स के एजेस जो थी उनके प्रोडक्ट x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय अब इनसे देखिए ऐसा है कि पॉसिबल है या नहीं है, ये पूछ रखा है। पॉसिबल कब होगा, जब इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हो, यानी कि रूट्स आपके मन के पॉसिबली रियल आना चाहिए, जब जाकर पॉसिबल होगा, नहीं तो नो रियल रूट्स आ जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x 40, यही होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16x, ठीक है, और प्लस ये आपका 4x और फिर क्या हो जाएगा माइनस 64, ये इधर आ जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0, यही होगा दोस्तों। देखिए अब माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 20x और माइनस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, माइनस स्टार्टिंग में आ रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रखा है, हम पॉजिटिव कर लेते हैं इसे, माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के सारे साइंस जो होंगे अपोजिट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस है, माइनस मतलब माइनस 1 है, ठीक है। माइनस 1 उस तरफ जा करके डिवाइड करने चला जाएगा 0 को, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका ये चीज़ हो जाए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो दोस्तों अब हमें ये पूछा है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन पॉसिबल होगा, यानी कि वास्तविक मूल होंगे तो ये जो अवस्था है ये संभव होगा, अदरवाइज अन्यथा ये असंभव रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। डी का वैल्यू फाइंड करने का मतलब कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, नहीं करते हैं तो नॉट पॉसिबल, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो येस इट्स पॉसिबल। तो रूट्स क्या होंगे वो फिर फाइंड आउट करेंगे हम, इसके डायमेंशंस तो इनके मतलब अलग अलग एजेस फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हियर ए इक्वल टू आपका 1 कुछ भी नहीं है 1 है, तो b इक्वल टू आपका माइनस 20 और c इक्वल टू 112, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b के वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस 20 है ना, माइनस 20 का ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के वैल्यू कितना है 1 इंटू सी की वैल्यू 112, यही होगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस
4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448 आएगा। ठीक है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -48 आएगा। सिंस इसमें क्या हो जाएगा आपका D इज लेस देन 0। ठीक है, द रियल रूट्स do not exist, therefore the situation is not possible। समझ आ रहा है? चूंकि D आपके नेगेटिव में आया, जब D नेगेटिव में आता है तो सिचुएशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। रीजन ये है कि नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इनके एजेस पॉसिबली नहीं फाइंड किया जा सकता, संभव नहीं हो सकता। ठीक है, हेलो तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ठीक है, कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 मीटर। देखिए ऐसा है, लेट the length and breadth of the rectangular park be ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, L और B रेक्टेंगल ये मान लेते हैं। ठीक है, तो वी आर गिवन एरिया इक्वल टू कितने हैं 400 मीटर स्क्वायर, यानी आपका L इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400। L है, L की जगह हम क्या करते हैं 400 अपन B दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो पेरीमीटर इक्वल टू कितने 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 80 मीटर। अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2L प्लस बी इक्वल टू 80। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2L प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा L प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अपन में 2, L प्लस बी इक्वल टू 40। ठीक है, L प्लस बी इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग, ठीक है, x पुटिंग L इक्वल टू 400 अपन B इन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, L प्लस बी इक्वल टू 40, L प्लस बी इक्वल टू 40, यही है। सो L की जगह हम क्या लेंगे 400 अपन B प्लस अगला B इक्वल टू 40, यही वो। ठीक है, 400 प्लस B स्क्वायर अपन में B इक्वल टू 40, यही बचेगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 400
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू बी यानी 40b। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बी स्क्वायर माइनस इसको इस तरफ ले आइए 40b और इसे उस तरफ ले जाइए 400 इक्वल टू 0। पॉसिबल है ये? 400 का क्या हो जाएगा? 400 का सीधा 20 इंटू 20, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल टू 0, यही होगा। b माइनस 20 माइनस 20 b माइनस 20, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? b माइनस 20 b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो क्या होगा? b माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड b माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो b इक्वल टू आपका 20 और b इक्वल टू आपका 20। यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। और डायमेंशंस क्या होंगे आपके? लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू भी कितना हो जाएगा आपका? 20 मीटर, यानी कि ये एक प्रकार का स्क्वायर है, ठीक है। ओवरऑल इतना है, यस इट इज पॉसिबल। और लेंथ इक्वल टू आपका 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर और यह एक स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कि पॉसिबल है डायमेंशंस फाइंड आउट करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर ओवर हो चुका है और जो भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और कंसेप्चुअल और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो भी आए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर दें, इस प्रकार के क्वेश्चंस लेके आएंगे दोस्तों। बने रहिएगा।